Hello everyone, we are here today at T-Max Cafe, India's most affordable and best cafe franchise. And we have with us Mr. Arindam. Hi Arindam. Hi, How are you doing? I'm doing great. How are you? I'm doing great. So today I'm here on behalf of Karo Startup, as you have already heard. And I'm here to have a conversation with you about your cafe. Sure. So tell us something about T-Max. T-Max is a growing cafe brand in India. It's recently started to grow. I think they have opened around 150 to 200 outlets as of now. In Northeast, we are the first ones who have started T-Max here in Guwahati. Also, how did you find the franchise? How did you connect with the franchise head? Connecting to T-Max was through social media only. I got connected through Instagram, connected with the team. They have coordinated well with me. I have put my points to them, and accordingly we have been successful in opening the cafe in around 2 to 3 months in such a short time. Related to franchisee, now what was the cost or what was the price that you had to pay to open T-Max? For opening T-Max, we paid around 3 lakhs or slightly less than 3 lakhs. That includes some kitchen equipments, the branding materials, and some raw materials as well. And I assume that is completely independent? Yeah, it's completely independent. Okay, so And after opening also, we do not have to pay any royalty as such. That's a one-time payment. As we can see that you have very beautifully set the cafe here right in front of your house. Wait. So I assume there is no such security fee or any kind of fee that you have to pay? No. Since this I have set up in my own campus, I do not have to pay any additional or any hidden charges as such. Only the cafe franchisee that I have paid upfront, plus in setting up a few minimal costs. No extra costs as such, and no monthly additional expenses also. I do not have to bear any additional cost. That is actually a plus point. Yeah. For first-time cafe owners, I would highly recommend that they can go to T-Max brand. तो अभी आपका कैसा चल रहा है कैफे? कैफ़े तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, फुटफॉल भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ओपनिंग से लेके आज तक भी मतलब फुटफॉल तो सेटिस्फैक्ट्री है। मैं कभी डिसअपॉइंटेड नहीं रहा उस बात को लेके। एंड टाइमिंग तो मेरा 3 बजे से रात को 10 बजे तक रहता है। इवनिंग को इसीलिए रखा है क्योंकि दिन में तो सब लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बिजी रहते हैं, तो वंस दे कम बैक दे हैव ए प्लेस टू हैंग आउट, दे हैव ए प्लेस टू चिल। सो मोस्टली टाइमिंग के हिसाब से तो मेरा मतलब काफ़ी अच्छा ही चल रहा है। So, are you a salaried person या फिर ये आपका एक फुल टाइम बिजनेस है? नहीं, फुल टाइम तो नहीं है, मैं अभी भी जॉब में ही हूँ, इसीलिए मैं इवनिंग को ये मतलब कर पाया हूँ। नहीं तो टाइम दोनों में टाइम देना इक्वली पॉसिबल नहीं होता है, तो मेरा टाइमिंग्स कभी क्लैश नहीं होता है। वंस माई जॉब गेट्स, मेरा ऑफिस का टाइमिंग खत्म हो जाता है, उसके बाद मेरा कैफे टाइम स्टार्ट होता है। As we know that this particular area does not come under the main city hub. जी। What was your idea or why did you think that यहाँ पे कैफे खोलना will be more profitable for you या फिर अच्छा रहेगा सबके लिए? प्रॉफिट का तो मैंने पहले सोचा नहीं। मेरा पहला कंसर्न था कि ये जैसे ही आपको पता है कि यूनिवर्सिटी है, काफ़ी कॉलेजेस भी है, तो मेरा टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स का ही है, तो सिटी का मुझे क्राउड पुल ऐसा भी नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ऐसा कोई हैंग आउट प्लेस नहीं है, मतलब इवनिंग को आके एक चाय पे चर्चा करना है, किसी को कोई प्रोजेक्ट पे डिस्कस करना है, वैसे बैठ के मतलब डिस्कस करने के लिए भी कोई जगह नहीं था। तो ये एक 2-in-1 पर्पस सर्व करता है। आप इवनिंग स्नैक्स या चाय कॉफ़ी के लिए भी बाहर आ सकते हैं, कुछ ग्रुप स्टडी करना है, ग्रुप कुछ एक्टिविटी करना है, उसके लिए भी आपको एक जगह मिल रहा है। तो मेरा सोल पर्पस वही था कि स्टूडेंट्स का जो नीड है इस एरिया में उसको कैटर करना है। तो उसके हिसाब से मुझे सिटी का क्राउड को खींचना ही नहीं है, यहाँ पे जितना स्टूडेंट्स लोग हैं उसी के लिए ही ये बना है। और रेट्स भी काफ़ी कम है, मतलब डेली भी आ पाओ तो आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा कि हम बाहर जाके डेली खा रहे हैं। सोल पर्पस वाज दैट ओनली, एंड आई थिंक आई एम एबल टू फुलफिल दैट up to a large extent. Certainly, like we have checked the rates of the food items and it's very pocket friendly for a student. Yeah. Come and sit and have a cup of tea. उसका रीज़न ये भी है कि मैंने अपने कैंपस में खोला है, तो आई डू नॉट हैव टू पे एनी रेंट, आई डू नॉट हैव टू पे एनी अदर चार्जेस। तो उस हिसाब से मैं भी मतलब रेट को जितना कम में पॉसिबल है उतना कम में मैं दे रहा हूँ।
इस रेट में तो आपको कहीं सिटी में कहीं पे भी मिलेगा नहीं। उसी को मतलब आइडिया को लेके ही मैंने ये ओपन किया है। For any sort of business or for any businessman, there are certain risk factors that comes along with that business. आपके लिए वो risk factors क्या थे या what were the problems that you faced in opening the cafe? नहीं, इसमें 2 चीज़ है। एक तो मैंने फ्रेंचाइजी लिया। फ्रेंचाइजी लेने से मतलब टीमैक्स ब्रांड की तरफ से मुझे क्या सपोर्ट मिला वो एक है, और एक बार उनका सपोर्ट हो गया तो बाकी चीज़ों को लाइन अप करने में वो मेरा खुद का एंड से हो रहा था। टीमैक्स की तरफ से मुझे सच कोई इशू नहीं था। जैसे ही मैंने कंफर्म किया, उनको इनिशियल टोकन मनी दिया, उन्होंने मुझे एक कोऑर्डिनेटर असाइन किया। सो दैट पर्सन वाज ट्रू एंड ट्रू एवरी टाइम इज इन कंटेक्ट विथ मी। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, जो भी डाउट्स हो, उन्होंने तुरंत मतलब क्लियर किया। पेमेंट ब्रेकअप कैसे क्या करना है सब कुछ समझाया। उसमें मैंने कोई इशू फेस नहीं किया। मेरे यहाँ सेटअप होने में इशू नहीं बोलूँगा, इट्स एक्चुअली एक छोटा सा चैलेंज है कि आपको आप कौन सा स्टाफ को हायर करेंगे, क्योंकि एक बार आप यहाँ पे स्टाफ को रख लेंगे, उनको ट्रेन अप करेंगे, उनको रिटेन भी करना होगा। अगर आप ट्रेन करके फिर वो चला जाएगा तो आपका कुछ मतलब नहीं बनता। Right. तो फाइंडिंग द राइट स्टाफ वाज क्वाइट चैलेंजिंग। तो अभी ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 5.5 months, तो वो सारा चीज़ अभी लाइन अप हो गया है। इनिशियल में वो थोड़ा दिक्कत आएगा, बाकी ऐसा सच कोई उतना मेजर इश्यूज तो नहीं, मैंने कुछ फेस नहीं किया। Also, as you have mentioned कि ये नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट टीमैक्स फ्रेंचाइज है। बीइंग अ बिजनेसमैन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट जोन, आपको क्या लगता है कि कितने प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे लोग फ्रॉम अ बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अभी इसमें तो मैंने जैसे ही बताया आपको, अदर देन स्टाफ रिलेटेड बाकी मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। बी इट फ्रॉम रॉ मटेरियल्स या वेंडर्स जो भी है, वो लोग जो सप्लाई करते हैं वो भी रेडिली अवेलेबल है। इनिशियल फर्स्ट वीक 10 days 15 days आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि कौन सा वेंडर को मैं चूज करूँ, कौन सा टाइम पे मुझे डिलीवरी दे ना दे। तो वंस दोज थिंग्स गेट्स अलाइंड, आपको अदर देन स्टाफ मेरे ख्याल से कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं होना चाहिए। हाँ, बस आप ओपन कर रहे हो तो आपको टाइम देना है, आप कैसे चीज़ों ऑपरेट हो रहा है वो आपको देखना है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल तो वो थोड़ा आपको पकड़ में रखना ही पड़ेगा। एक बार सारा चीज़ लाइन अप हो जाए तो उतना इश्यूज नहीं है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग फैक्टर, क्योंकि एज यू सेड आप सैलरीड पर्सन भी है और आप बिजनेस भी संभाल रहे हैं, तो वो टाइम मैनेज करना इज ऑल्सो बिग थिंग। टाइम मैनेज करना, कभी कभी ऑफिस मीटिंग्स वगैरह लेट हो जाने से थोड़ा दिक्कत होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% बिल्कुल भी सीमलेसली हो जाता है, पर टाइमिंग भी मैंने इवनिंग ही रखा, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा है कि ये स्टूडेंट्स के लिए है, तो दिन में तो वो लोग भी क्लासेस में रहेगा। मैं सुबह से खोल के रखूँगा कैफ़े तो कोई मेरा आने वाला नहीं है। अभी आई वांट टू नो अबाउट योर इनिशियल कॉस्ट दैट यू हैड टू इनकर। जो इनिशियली आपका कॉस्ट रहा। इनिशियल फ्रेंचाइजी कॉस्ट वाज नियर अबाउट 3 lakhs। अभी मेरे ख्याल से अराउंड 3.7 कुछ चल रहा है उनका। कुछ ऑफर चल रहा था उस टाइम, मैंने जब लिया था तो मुझे कुछ डिस्काउंट मिल गया था। और बाकी एक्सटर्नल मुझे अराउंड आई थिंक 1 lakh, हार्डली 1 lakh आई पेन, नियर अबाउट 4.5 lakhs में सारा। और जो कि मेरा ओपन कैफे है तो मुझे अलग से कंस्ट्रक्शन में भी कुछ खर्चा नहीं हुआ है। सो योर इनिशियल कॉस्ट सब कुछ मिला के रफली आप राउंड फिगर 4 lakhs आप मान चलते जी। तो अभी आपका प्रॉफिट मार्जिन या फिर टर्नओवर कैसा हो रहा है? टर्नओवर बोलने के लिए तो अभी कुछ ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, और मार्जिन आप मान के चल सकते हो अराउंड, ग्रॉस तो मेरा अराउंड 40-45% रहता है। 40-45% ग्रॉस मार्जिन ही आता है। मतलब आप सही से चलाओ तो उतना पॉसिबल है। आप बेस्ट, मतलब मैं लिस्ट पॉसिबल रेट में भी दे रहा हूँ, क्वालिटी भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी आप खुद मॉनिटर करके चलाओगे तो 40-45% तो मेरे ख्याल से किसी को भी उतना तो बनेगा। So I guess we have covered almost all the areas of your cafe, the T-Max Cafe. And thank you so much, Arindam, for being with us today and sharing your story with Karo Startup. Hope to see you and connect with you in the future. थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मुझे भी अच्छा लगा ये जो मेरा स्टार्टअप का जर्नी रहा है, मतलब क्वाइट अ स्मॉल जर्नी, फिर भी मुझे जो शेयर करने का मौका मिला है उसके लिए काफ़ी थैंक यू। Okay, thank you.